Now our chapter acids, bases and salts. Children, what are acids? In everyday life, we are dealing with some of the other acids. Okay, so I'll tell you in what all things you are getting what acid. Children, nowadays we all take what do we like to eat? We like to eat Chinese food, isn't it? In that we have vinegar. Usme vinegar डालते हैं. That vinegar is known as acetic acid. That vinegar is 10%. It is acetic acid is vinegar. Next acid is formic acid. And string. It is found in the string of the ant. String means बच्चे जो चींटी होती है, चींटी जब हमको डंक मारती है तो it burns our hand or whatever, wherever it bites us, it burns because it releases an acid known as formic acid. Okay, so ant string, formic acid is found. Next is acetic acid, citric acid. Children, citric acid, हर एक citrus food में citrus acid पाया जाता है. Citrus food मतलब हर एक खट्टे fruits में, और whatever the thing is sour in taste, that is you have citric acid in it. Now what is lactic acid? लैक्टिक एसिड चिल्ड्रन, कर्ड में जो एसिड पाया जाता है, दही में जो एसिड पाया जाता है, दैट इज लैक्टिक एसिड. नेक्स्ट इज ऑक्सैलिक एसिड. व्हाट इज दैट चिल्ड्रन? अगेन स्पेल इट, ऑक्सैलिक एसिड. इट इज फाउंड इन स्पिनच, दैट इज पालक में ये ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है. नेक्स्ट कमिंग अप टू एस्कॉर्बिक एसिड. एस्कॉर्बिक एसिड आंवला या फिर अनराइप जो ग्रीन कलर का जो ग्रेप्स होता है, और दिस इज ऑल्सो फाउंड इन द सिट्रस फ्रूट्स चिल्ड्रन, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड. व्हाट इज दैट? एस्कॉर्बिक एसिड. नेक्स्ट इज टार्ट्रिक एसिड. नाउ टार्ट्रिक एसिड नाम से ही टैमरिन, दैट इज इमली में पाया जाता है. बाय नेम ओनली यू विल कम टू नो टार्ट्रिक एसिड. Now children, about the bases. We will know some of the bases. We will know the name of some of the bases children. कुछ bases के नाम हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं. See children, calcium hydroxide. Calcium hydroxide that is lime water, और in हिंदी में हम लोग उसको कहते हैं चूने का पानी. ठीक है? What is that चूने का पानी? That is take lime. Lime means children चूना लो, उसके चूना में पानी डाल दो. It will start bubbling. And let it settle. उसको settle होने दीजिए. ऊपर जो पानी बच जाता है, that is known as lime water. The formula for calcium hydroxide is CaOH whole twice. Children, when we write like this, that is known as whole twice. That is calcium hydroxide. CaOH whole twice calcium hydroxide. In common name is lime water. चूने का पानी. Next base is potassium hydroxide. Hydroxide जब भी वर्ड आ जाता है हाइड्रोक्साइड, मतलब आप याद रखिए दे आर बेसिस. ऑल आर हाइड्रोक्साइड, दैट मीन्स दे ऑल आर बेसिस. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज KOH. इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोप. साबुन जो आप नहाते हो या कपड़े धोते हो, ऑल आर मेड बाय दिस KOH, that is potassium hydroxide. Same children, sodium hydroxide, that is NaOH. NaOH is also used for making soap. ये भी साबुन बनाने के काम आता है. Next is magnesium hydroxide, that is milk of magnesia. Magnesium hydroxide, that is milk of magnesia. Children, what is this milk of magnesia? जब आपको acidity होती है, जब आपको पेट में गले में जलन लगता है, if you eat something abnormal, you feel acidity. That time we take some of the antacids. चाहे आप डाइजिन या इस तरह के जो भी गोलियां लेते हो, that is what milk of magnesia. नेक्स्ट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड. दैट इज चिल्ड्रन अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो विंडो क्लीन करने के लिए जो हम एक तरह का बेस भी है, दैट इज मेड अप ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस. सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH. Calcium hydroxide, that is CaOH whole twice. So these are the name of some of the bases, and these were some of the acids. This we have studied. Again I'll read for you: acetic acid, formic acid, citric acid, lactic acid, oxalic acid, ascorbic acid, tartric acid. And bases: calcium hydroxide, potassium hydroxide, sodium hydroxide, magnesium hydroxide and ammonium hydroxide. These are some of the bases and these are some of the acids we will study in this chapter. Now children, what are acids and what are bases? Our tongue is having taste bud. हमारे टंग में कुछ taste buds हैं. They tell you about the thing is sweet, sour, bitter or salty.
ओके हमारा टेस्ट बड्स हमको किस बारे में बताता है कि जो हम खा रहे हैं वो स्वीट है, कि वो सार है, कि वो बिटर है, कि वो सॉल्टी है. what do we are eating, what taste we are getting. So when we put something in our mouth, if it tastes sour, अगर खट्टा सार हमको लगता है, फील आता है, that means they come under acid. कोई भी चीज अगर आपको sour to taste है, they come under acids. Whenever anything which is bitter to taste, थोड़ा सा हल्का, it is not करेले का कड़वा, I am not talking about that, it is not that bitter, means some kind of bitterness you will found, means कसा हुआ आपको जो लगता है, कसाव सा मुंह में फील होता है, they come under base. Okay, now children, they are sour to taste. Acids आपको कैसे पता चलेगा, आपने मुंह में डाला, if it is sour to taste, they are acids, they contain acid. Such substances are said to be acidic in nature. ऐसे substance acidic in nature होते हैं. कुछ substances ऐसे होते हैं which are bitter in taste. When you touch, they are soapy in feeling. आप साबुन को लीजिए और ऐसे छू के देखिए, they are soapy to touch. That means they are basic in nature. Such substances are said to be basic. ऐसे substance को हम base कहते हैं. कुछ acids और कुछ base everyday life we are dealing with children. हम everyday अपने life में कुछ acids और कुछ bases के साथ deal करते हैं. ये तो आपको acids और bases कैसे करके पता चला, टेस्ट करके पता चला. You are tasting, if it is tasting sour, you know it is acid. If it is tasting bitter, you know it is base. You are touching it, if it is soapy to touch, it is base. और अगर वो soap जैसा नहीं हो रहा है, means slippery नहीं हो रहा है आपके हाथ में, they are acid. अगर कोई ऐसी चीज है जिसको आप टेस्ट नहीं कर सकते हो, but you have to find out कि it is acid or it is base. So how you will find out children? In that case, we have some of the indicators with us. Indicators वो होते हैं children which tell us about the acidity or basic. The substance is acidic or basic in nature. वो acidic है या basic है, ये पता करने के लिए हम कुछ indicators, कुछ हम solutions, कुछ substances use करते हैं, and they are known as indicators. Now children, we have some of the natural indicators as well as artificial indicators we have which are synthetic in nature. Natural indicators means जो हमको nature ने provide किया है. First is children litmus paper. Litmus paper छोटे छोटे लंबे लंबे strips होते हैं children. Litmus paper. Lichens एक नेचर में एल्गी और फंजाई का कॉम्बिनेशन है लाइचिन. लाइचिन से हमको ये लिटमस पेपर मिलता है. दो तरह के लिटमस पेपर आते हैं, ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर. नाउ यू टेक द सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन जो आपको दिया गया है आप उसको लीजिए और उसमें आप ब्लू लिटमस पेपर पहले डिप करके देखिए. इफ दैट लिटमस पेपर इज टर्निंग टू रेड, अगर वो ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न हो गया, दैट मीन्स इट इज एन एसिड. और अगर आप रेड लिटमस पेपर डालो, कोई चेंज नहीं हुआ, दैट इज दे आर एसिड. Now for base, you put red litmus paper, it will turn to blue. अगर आप red litmus paper, दोनों आप दो तरह का आपको substance दिया गया है, आप दोनों में सब तरह के litmus paper dip करके देखिए. If blue litmus paper turns red, it is acid. लाल रंग का बन गया एसिड. एसिड इज डेंजर. ओके, कोई भी जब एसिड जो लैबोरेटरी एसिड्स होते हैं, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड और सम अदर HCl, व्हाट इज, दे आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर स्किन चिल्ड्रन. तो हार्मफुल मतलब याद रखो, लाल रंग टर्न हो जाता है. ब्लू लिटमस पेपर रेड, एंड इफ इट इज बेस तो रेड लिटमस पेपर विल टर्न ब्लू, एंड विथ द ब्लू लिटमस पेपर नो चेंज. सो ये एक आपको इंडिकेटर है, फर्स्ट इंडिकेटर, दैट इज लिटमस पेपर. लिटमस पेपर आप दोनों में डिप करके देखेंगे. ब्लू लिटमस पेपर रेड, इट इज एसिड, एंड रेड लिटमस पेपर ब्लू, इट इज बेस. नेक्स्ट इंडिकेटर इज चिल्ड्रन टर्मरिक. टर्मरिक इज हल्दी, जो आपके घर में नॉर्मल खाना बनाने में यूज होता है, दैट इज टर्मरिक. अगर टर्मरिक आप डीप, अगर आपने कोई भी एसिड टर्मरिक में आप व्हाट डू यू कैन डू, पुट हल्दी का पेस्ट इन योर क्लोथ एंड उसमें आप थोड़ा सा एसिड, नींबू निचोड़ के देखिए, आप देखेंगे कोई चेंज नहीं होगा, वो डीप येलो ही रहेगा. दैट मीन्स इट इज एन एसिड. नाउ नींबू से कोई फर्क नहीं पड़ा, अब उस कपड़े पे आप सोप घीस दीजिए, ठीक है. एज यू रब द सोप, इट विल टर्न रेडिश ब्राउन, वो लाल रंग का हो जाएगा एकदम. जो आपने टर्मरिक का पेस्ट अपने कपड़े में लगाया है, उसमें अगर आप जैसे ही साबुन लगाएंगे वो बिल्कुल रेड कलर में टर्न हो जाता है. दैट मीन्स सोप इज अ बेस. एसिड के साथ टर्मरिक नो चेंज, इट इज डीप येलो ओनली,
टर्मरिक का कलर डीप येलो रहता है। अगर आप एसिड उसमें डालते हैं तो बिल्कुल वही डीप येलो ही रहता है। अगर आप बेस डालते हैं उसमें कोई भी साबुन, मैंने जैसे आपको बताया सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों ही बेस हैं एंड दे आर सोप। ओके, सो सोप जैसे ही आप उसमें घिसते हो तो क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। दैट मीन्स इट इज बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट इज चाइना रोज चिल्ड्रन। चाइना रोज आपने गुड़हल का फ्लावर सबने देखा होगा, माता जी में चढ़ता है गुड़हल का फूल। गुड़हल का फूल को आप एक पानी में ल्यूकवार्म वाटर में डिप करके रखिए, देन यू टेक आउट दैट गुड़हल petals from it, and that the product which you get, it is China rose indicator. Now children, China rose indicator with acid it becomes dark pink in color. Means China rose indicator डालिए, उसमें आप नींबू डाल दीजिए या सिट्रिक एसिड या विनेगर, कुछ भी इन एसिड्स में से डाल दीजिए। You will see it will turn dark pink और मजेंटा कलर हम बोलते हैं उसको, डार्क पिंक कलर का वो बन जाएगा। अगर आप कोई भी बेस डालते हो, दैट इज शैम्पू डाल दोगे तो वो ग्रीन कलर का बन जाएगा। ओके, चाइना रोज इंडिकेटर आप घर में बना सकते हैं चिल्ड्रन, गुड़हल के फूल के साथ। अगर उसमें आप लाइम जूस डालोगे वो पिंक कलर का हो जाएगा, दैट मीन्स इट इज एन एसिड। अगर उसमें आप शैम्पू या साबुन का पानी बना के डालोगे तो इट विल टर्न ग्रीन इन कलर, दैट मीन्स इट इज बेसिक इन नेचर। सो दीज वर द 3 नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमको नेचर से प्रोवाइड हो रहा है। इसमें कोई आर्टिफिशियल मीन्स हमने कोई चीज को लेबोरेटरी में नहीं बनाया है, कोई चीज को हमने फैक्ट्री में नहीं बनाया है। सो दीज ऑल इंडिकेटर्स आर द नेचुरल इंडिकेटर्स, लिटमस पेपर, टर्मरिक, चाइना रोज। Now next is phenolphthalein children. Phenolphthalein is a synthetic indicator. ये एक synthetic indicator है, इसमें एसिड के साथ ये कलरलेस हो जाता है। एक एसिड लीजिए, HCl का एसिड लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा phenolphthalein डाल दिए, नो चेंज इन द कलर, यू विल सी इट विल बी वाइट इन नेचर। ओके, अब उसमें आप धीरे धीरे से कोई भी बेस दैट इज NaOH डालते रहिए थोड़ा थोड़ा करके। आफ्टर सम टाइम यू कैन सी द चेंज इन कलर। जैसे ही वो एसिडिक नेचर बेसिक में बदलने लगता है, वो सोल्यूशन एसिड से बेस बनने लगता है, वो किस कलर का हो जाएगा, आपको पिंक कलर का दिखाई देगा। ठीक है, मान लो वो आपने कहा काफी ज्यादा बेस उसमें डाल दिया, पूरा पिंक कलर का बन गया। ठीक है, अब उसमें आप वापस काफी सारा एसिड डाल दीजिए, वापस आप देखोगे वो पूरा पानी जो है वो वापस कलरलेस हो गया। ये एक तरह का जादू के जैसा दिखाई देता है चिल्ड्रन। यू फील कि इट इज सम मैजिक इज गोइंग ऑन। इफ यू पुट मोर ऑफ एसिड इट विल बिकम कलरलेस, इफ यू पुट मोर ऑफ बेस इट बिकम्स पिंक इन नेचर। ओके, वो पिंक कलर का हो जाता है। फिर आप उसमें ज्यादा एसिड डाल दीजिए, वो कलरलेस हो जाएगा। फिर आप बेस डाल दीजिए, वो पिंक हो जाएगा। मींस जब ये सोल्यूशन एसिडिक इन नेचर हो रहा है, वो कलरलेस हो रहा है, एज यू आर पुटिंग एक्सेस ऑफ बेस इट इज बिकमिंग पिंक इन कलर। सो दिस इज द केस विद phenolphthalein। चिल्ड्रन, इसी चीज के साथ हम आगे प्रोसीड करेंगे। एक रिएक्शन होता है चिल्ड्रन, ये जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं किसी चीज में तो सॉल्ट और वाटर बनता है। This process is known as neutralization reaction. When acid is mixed with a base, salt and water is formed. This reaction is known as neutralization reaction. Children, please take the screenshot of this blackboard once so that whatever I have explained, you can go through it nicely. Till now we have done acids, bases. Now the next is neutral solution. First solution was acid, second solution was base, and now this solution is neutral solution. Now if you get a third kind of solution which is not reacting with red litmus paper nor it is reacting with the blue litmus paper, that means that substance is not an acid nor it is a base. So those kind of substance are known as neutral solution. ऐसे solutions को हम neutral solutions कहते हैं। They are neither acidic nor basic in nature. They do not react with litmus paper, means they don't change red litmus paper to blue, or nor they will change blue litmus paper to red. So that solution is known as neutral solution. I was telling you about the neutralization reaction. This is now very important reaction, children. In higher classes also you will have the same kind of reaction and same definition you can write. What is it? When acid reacts with base to form salt and water with evolution of heat is known as neutralization reaction. जब acid base के साथ react करता है
क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर। और इस समय एक हीट का एवोल्यूशन होता है, मीन्स अगर आप टेस्ट ट्यूब को पकड़ के देखोगे तब यू कैन सी कि आपका टेस्ट ट्यूब गर्म हो गया। दैट मीन्स इट इज द एवोल्यूशन ऑफ हीट इज देयर एंड दैट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज इट चिल्ड्रन? अगेन, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, जब एसिड और बेस को मैं एक टेस्ट ट्यूब में मिला दूंगी तब मैं देखूंगी वो पूरा टेस्ट ट्यूब जो कैसा हो जाएगा, वाटरी व्हाइटिश हो जाएगा, सफेद रंग का पूरा हो जाएगा। दैट इज उसमें पूरा प्रेसिपिटेशन रहेगा। आप थोड़ा देर उसको रहने देंगे तो इट विल सेटल डाउन। आप देखेंगे कुछ सॉल्ट नीचे जमा हो गया और ऊपर जो है दैट इज वाटर। जब आप एसिड और बेस को डालते हो एक टेस्ट ट्यूब में, इफ यू होल्ड द टेस्ट ट्यूब एंड सी, यू विल फाइंड द टेस्ट ट्यूब इज नाउ हॉट। वो टेस्ट ट्यूब अब गर्म हो गया है, क्योंकि चिल्ड्रन ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट का एवोल्यूशन होता है। सो again, neutralization, what is that? When acid reacts with base to form salt and water with evolution of heat is known as neutralization reaction. HCl, that is hydrochloric acid, when reacts with NaOH, that is जिसको साबुन बनाने के यूज में आता है, I told you before also, that is NaOH, तो वो क्या बनाता है, NaCl, that is sodium chloride and water. Sodium chloride is children नमक, NaCl salt, whatever you can call it as. Okay, so this was your chapter related to acid, bases. That is one solution was acid, one base, one neutral solution. और जब acid और base को दोनों एक साथ हमने डाल दिया तो वो reaction को neutralization reaction हमने कहा। Now children, some of the common factors we will see कि किस तरह से कोई भी चीज acidic या basic बन जाता है। Some of the neutralization reaction we will learn in our everyday life. जो हम ये तो हमने केमिस्ट्री के टर्म्स में पढ़ा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, जब एसिड और बेस मिलाएंगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। ये हमने केमिस्ट्री के टर्म्स में पढ़ा। अब एवरीडे लाइफ में भी चिल्ड्रन हम ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमको देखने के लिए मिलता है जब भी कोई एंट बाइट करता है। चिल्ड्रन, व्हेन आई वाज टीचिंग फर्स्ट व्हाट एसिड्स, आई वाज टेलिंग यू द नेम ऑफ द एसिड्स, दैट टाइम आई टोल्ड यू अबाउट दिस फॉर्मिक एसिड चिल्ड्रन, कि वो एंट स्ट्रिंग में मिलता है। So children, when the ant bites you, आपको एक जलन होता है, you feel burning in your skin. That means आपके स्किन में एंट ने क्या इंजेक्ट कर दिया है, फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर दिया है। Now children, if you rub with the baking soda, baking soda मतलब मालूम है आप, खाने का सोडा जो होता है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जो हम केक बनाने के लिए यूज करते हैं, सेम बेकिंग सोडा। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। The chemical name of baking soda is sodium hydrogen carbonate. ये बेकिंग सोडा थोड़ा सा लेके आप अपनी स्किन में अगर रब कर लेंगे चिल्ड्रन, you will find that burning sensation goes, means एंट ने आपको एसिड डाला, आपने बेस उसमें लगा दिया तो न्यूट्रलाइज हो गया, एसिड ने बेस को दबा दिया, अब वो बर्निंग सेंसेशन आपको बिल्कुल नहीं फील होगा। Either you can put baking soda or you can put calamine lotion. Calamine lotion में भी चिल्ड्रन जिंक कार्बोनेट होता है, which is again a base. जिंक कार्बोनेट भी एक बेस है। मीन्स आपको एंट ने एसिड डाला तो आप बाहर से एक बेस को रब कर लीजिए, the burning sensation will go and that is the neutralization reaction. एसिड रिएक्ट किया बेस के साथ तो वो जलन खत्म हो गई, क्योंकि सॉल्ट और वाटर वहां पर बन गया, एक तीसरी चौथी चीज वहां बन गई, इसीलिए आपको वहां पर कोई बर्निंग फील नहीं होता है। नेक्स्ट चिल्ड्रन, हम सॉइल ट्रीटमेंट देखेंगे। क्या होता है चिल्ड्रन, नाउअडेज फार्मर्स आर यूजिंग अ लॉट ऑफ फर्टिलाइजर्स। फार्मर्स बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं। फर्टिलाइजर्स का ज्यादा यूज जब हम करने लगते हैं ऑन द लैंड, व्हाट इट बिकम्स चिल्ड्रन, द लैंड ईदर बिकम्स वेरी एसिडिक और इट बिकम्स वेरी बेसिक इन नेचर। चाहे कभी कभी लैंड बहुत एसिडिक हो जाता है या फिर कभी बहुत बेसिक हो जाता है। अगर आपका लैंड आपको लगता है एसिडिक हो गया है ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, यू कैन पुट क्विक लाइम। क्विक लाइम का मतलब होता है चिल्ड्रन चूना। क्या करते हैं फार्मर्स, लैंड में चूना डाल के कुछ समय के लिए रख देते हैं तो वो एसिडिटी ऑफ द लैंड चला जाता है। अगेन वो एसिड था तो ये चूना क्या मैंने आपको बताया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज CaOH होल ट्वाइस, ये कैल्शियम दैट इज क्विक लाइम इज CaO। क्विक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं डाल रहे हैं चिल्ड्रन, हम यहाँ पर क्विक लाइम डाल रहे हैं, दैट इज CaO, कैल्शियम ऑक्साइड सिर्फ हम डाल रहे हैं। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या कर देता है, एसिडिक नेचर ऑफ द सॉइल को बेसिक इन नेचर कर देता है और दोनों न्यूट्रलाइज होके अब वो इफेक्ट, ना वो एसिडिक रहा ना वो बेसिक रहा, अब वो सॉइल न्यूट्रल बन गया एंड यू कैन यूज इट अगेन फॉर द farming work. If the
लैंड बिकम्स बेसिक, अगर लैंड बेसिक हो गया है तो वहां पर ऑर्गेनिक मैटर डाला जाता है। ऑर्गेनिक मैटर मीन्स चिल्ड्रन, चाहे आप गोबर खाद डालिए, चाहे आप सूखे हुए पत्ती डालिए, चाहे आप घर के जो किचन गार्डन का किचन वेस्ट जो है वो डालिए, मीन्स एनीथिंग ऑर्गेनिक, चाहे आप वर्मी कंपोस्ट डालिए, तो उन लैंड में आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डाल के छोड़ दीजिए। आफ्टर फ्यू डेज और फ्यू वीक्स यू विल फाइंड द लैंड हैज बिकम अगेन, द बेसिसिटी ऑफ द लैंड हैज गॉन एंड इट इज अगेन नाउ न्यूट्रल and it is again used for the, you can now again use for the farming purpose। तो ये फिर से क्या हुआ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक हमने स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग के साथ देखा, दूसरा हमने सॉइल ट्रीटमेंट में देखा, तीसरा हम देखेंगे फैक्ट्री वेस्ट। चिल्ड्रन, कोई भी फैक्ट्रीज क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अपना जो वेस्ट निकलता है उसको पानी में डिस्पोज कर देते हैं, पानी में उसको फेंक देते हैं। बट चिल्ड्रन शुडंट बी डन, उसको पानी में नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि फैक्ट्री वेस्ट में बहुत ज्यादा एसिड्स पाया जाता है। ओके, सो फर्स्ट द फैक्ट्री वेस्ट शुड बी न्यूट्रलाइज्ड बाय पुटिंग बेस इनटू इट। फैक्ट्री वेस्ट में पहले काफी सारा बेस डाल के उसको न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए, ताकि अब वो एसिड भी नहीं रहेगा, वो बेस भी नहीं रहेगा, वो न्यूट्रल बन जाएगा एंड देन इट शुड बी डिस्पोज्ड ईदर ऑन द लैंड और इन द वाटर। तब उसको फेंकना चाहिए, पानी में फेंको चाहे आप लैंड में फेंको। ठीक है, मीन्स हमको एसिड या बेस को सिंपली कहीं भी नहीं डालना चाहिए। यू हैव टू फर्स्ट न्यूट्रलाइज इट, दैट इज उसको एसिड भी मत रहने दीजिए, बेस भी मत रहने दीजिए, उसको न्यूट्रल में चेंज कर दीजिए एंड देन यू हैव टू डिस्पोज इट। Now children, one more very important topic, that is acid rain। acid rain जो है always it has been asked in the question papers। acid rain के बारे में हमेशा question papers में पूछा जाता है। not only in 7th class children, in higher standards also you will find कि acid rain as a short note they always ask you, आपको हमेशा acid rain उन लोग पूछते हैं in the question paper। see children, what is acid rain? जो पानी आसमान से गिरता है, बादल से वो एसिड बन के नहीं गिरता है चिल्ड्रन, लेकिन जब वो बादल से जब पानी ट्रैवल करता है, हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करता है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ पोल्यूटेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये पोल्यूटेंट्स क्या करते हैं, दे मिक्स विद दैट रेन वाटर एंड नाउ दे आर नॉट वाटर एज सिंपल, दे बिकम carbonic acid, sulfuric acid or nitric acid। when they come to ground they become these kind of acids and this is known as acid rain। जो आसमान से पानी गिर रहा है, जब आप लिटमस पेपर डालेंगे, ब्लू लिटमस पेपर, वो रेड बन जाएगा, मीन्स दैट वाटर इज एक्चुअली नॉट वाटर, इट हैज चेंज इनटू माइल्ड एसिड। लेकिन बादल से वो माइल्ड एसिड नहीं गिरा। फैक्ट्रीज क्या करता है चिल्ड्रन, फैक्ट्रीज का जो धुआं निकलता है, जो स्मोक निकलता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक्सेस अमाउंट में पाया जाता है। एंड व्हेन दिस रेन, जब ये पानी गिरता रहता है, ये जो पोल्यूटेंट्स है दे हैव एफिनिटी विद वाटर, ये पानी के साथ तुरंत ही मिक्स हो जाते हैं एंड दे कम टू द ग्राउंड एज एसिड विच इज नोन एज एसिड रेन। तो रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज नोन एज एसिड रेन। वो पानी, वो रेन जिसमें एक्सेस ऑफ एसिड है, उसको एसिड रेन कहा जाता है। सो हाउ इज द एसिड रेन फॉर्म चिल्ड्रन? बाय द पोल्यूटेंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, and they come to, when they mix with the water they form carbonic acid, sulfuric acid or nitric acid when they come to ground in the form of acid। so this kind of acid rain is known as acid rain। इस तरह का पानी जब नीचे गिरता है इसको acid rain कहा जाता है चिल्ड्रन। they damage the buildings, they damage the standing crop। standing crop का मतलब जो ripe crop है, जो तैयार हो गया है, उस crop में अगर ये acid गिरता है तो वो crops को खराब कर देता है। हमारा बहुत अच्छा monument है, that is ताजमहल, which we all know children, every day it is turning yellow। वो दिन ब दिन येलो टर्न होता जा रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस एसिड रेन। एसिड रेन उस पे ज्यादा हो रहा है बिकॉज लॉट ऑफ फैक्ट्रीज आर देयर इन आगरा, nearby areas which are emitting these kind of pollutants, and so the rain which is caused over there is acidic in nature and so it is corroding। वो क्या कर रहा है, ताजमहल का जो मार्बल है उसको करोड करता जा रहा है, उसमें येलोइशनेस आते जा रहा है, एंड स्मॉल होल्स आर बीइंग मेड इन दैट मार्बल which is being destroyed day by day। So this acid rain is very hazardous to even human beings as well animals and plants। They damage our property in a lot of amount।